Okay, so basically what ethnocentrism means is that कि आप अपने central belief system को superior समझ रहे हैं. कि बहुत simplistic example ये है कि whenever Americans go to England, they never say that the Brits drive on the left side. They always say that people in England drive on the wrong side of the road. Now, why are you saying wrong side? Because inherently assumption क्या है कि whatever we are doing is right and whatever the other person is doing is wrong. All you have to say is to maintain this simple statement of fact कि they drive on the other side of the road. It's actually as simple as that. लेकिन whenever you put a label on it, it is wrong, it is a complex way of driving, or whatever subtle approach you want to take to it, but it is an ethnocentric approach. The moment you are judging the other person's culture, your system, your policy, your dress code, your whatever, you are being ethnocentric. फिर इसका exact opposite है, which is xenocentrism. Now, xenocentrism is essentially the opposite of ethnocentrism. It refers to the belief system कि आपका जो culture है वो दूसरे से inferior है. Now, this is like a complex. अब इसकी मैंने breakdown mention की हुई है कि xeno means stranger and or foreign guest, and that means कि xenocentrism की जो first perpetual example हमें मिलती है that initiated from the time of colonialism. Obviously इसके अलावा भी हमें इसके बहुत सारे instances मिलते हैं history के अंदर, but that is one time frame जिसको आप बहुत conveniently quote कर सकते हैं कि जहाँ पे आप सबसे बड़ी example ले लें that me right now communicating with you guys is in fact a symbol of xenocentrism. I should be communicating in Urdu. You guys should be responding in Urdu. Your entire exam should be in some regional language or in Urdu. Our over reliance on English shows कि हमारा जो mindset है वो English को कबूल कर चुका है और अपनी languages को reject कर चुका है. Why is it that someone speaking Urdu या Punjabi is considered less educated? आपने खुद symbol एक लगाया हुआ है ना कि जो भी जरा बेहतर अंग्रेजी बोलता है somehow that person is better educated. Is that somehow a justification? No, it is not. Is it a definite fact? Also not true. लेकिन इसकी example आपके पास सबसे closest, you look at home and you see कि भाई आप लोगों ने भी इसी dilemma को face किया, this identity crisis that happens due to xenocentrism. आप देखें कि पेशावर में एक गोरी खातून आके साइकिलिंग कर सकती है आराम से. I would go as far as to say safely कर सकती है. आपकी अपनी को खातून कर सकती है? Absolutely not. Why? Why is it that you have a different set of cultural norms for anyone visiting your country and those people that are living in the country at the same time? You are आपका एक duality है because you believe कि इनका culture हमसे superior है. You don't try to implement it. You are not harsh in its implementation for strangers or for people with white skin specifically, because आपका वो जो एक mindset था ना of people under slavery या people being governed और अंग्रेजों की गुलामी. There is a very famous Urdu मुहावरा that states कि अंग्रेज चले गए और नखरे छोड़ गए. तो जो नखरे हैं ना वो हम आज तक उठा रहे हैं और उसका major reason है xenocentrism. अब आप इसमें छोटी सी एग्जांपल ले लें कि जब आप कई लोग हमारे अपने सिटीजन्स आपके अपने जानने वाले ऐसे हो सकते हैं कि वो अब्रॉड जाते हैं, कुछ साल दो रह के आते हैं, वापस आते हैं, ऐसा कमाल का उनका एक्सेंट बन चुका होता है जो कि यहाँ 20-25 साल जिंदगी गुजारने के बावजूद उर्दू ऐसी नहीं आती जैसी वहां से अंग्रेजी 2 साल में सीख के आ जाती. मतलब आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव कम अक्रॉस सो मेनी पीपल दैट डू दिस. तो वो क्यों होता है? बिकॉज दे एसोसिएट सम लेवल ऑफ क्लास एंड सम लेवल ऑफ social mobility with this accent that they have just purchased from abroad. उसको लेके वो आ गए वहां से.
और ये चीज आप नहीं देखेंगे चाइनीज के अंदर, जापानीज के अंदर. दे नेवर ट्राई टू मोल्ड देयर लैंग्वेज द वे लाइक अ ब्रिट वुड डू और मे बी एन अमेरिकन. वो अपने उसी बुरे एक्सेंट के साथ बात करना पसंद करते हैं. दे टेक ग्रेट प्राइड इन देयर ओन कल्चर एंड लैंग्वेज. सेम इज ट्रू फॉर फ्रेंच एंड मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज. वो अपनी जुबान में एजुकेट करना पसंद करते हैं और अपनी जुबान में बात करना पसंद करते हैं. But that is not true for you or many other xenocentric individuals or cultures. फिर हम आते हैं कल्चरल इंपीरियलिज्म की तरफ. Now this is the deliberate imposition of your culture on another culture. अब ये इंपीरियलिज्म आपको पता है, अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस रखे या इंटरनेशनल रिलेशंस रखे हुए हैं तो आप यू मस्ट कम अक्रॉस दिस टर्म इंपीरियलिज्म, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म. या आप ये देखिए, व्हाट वाज द प्रीटेक्स्ट ऑन व्हिच द ब्रिटेन डिसाइड टू स्टे इन इंडिया, कि वी द इंडियंस नीडेड टू लर्न civility. This is a core reason that the Indians were like a barbaric, beastly people with a beastly religion. That these are the exact words said by Winston Churchill for Indians, जिनको बहुत बड़ा हीरो मानते हैं ब्रिटेन के लोग. This man was solely responsible for the Bengal famine. And उसने राशन राउट कर दिया था वहां से, because he did not consider Indians as humans. और दे वो कि भाई आपकी कल्चर वैल्यू सुपीरियर और हमें इनको इंसान बनाना है. दिस वेरी अजम्पशन कि जो 16th सेंचुरी के आपकी यूरोपियन जो पब्लिक थी, दे ऑल प्रिज्यूम दैट द अफ्रीकन्स were these barbaric people that needed to be westernized, the Indians needed to be westernized, the Asians needed to learn the western way. बिकॉज एक वेव आई थी कॉलोनाइजर्स की, जिन्होंने गवर्नेंस के थ्रू अपने ड्रेस, रिलीजन, कल्चरल प्रैक्टिसेस, हर चीज को जबरदस्ती इम्पोज किया इन स्टेट्स के ऊपर जो उन्होंने कॉलोनाइज की. और फिर इसमें मैस मर्डर भी शामिल था, कल्चरल सप्रेशन भी शामिल थी, लोकलाइज प्रैक्टिसेस को दबाना भी शामिल था. हर चीज को उन्होंने दबाने की कोशिश की. नाउ दिस इज अ फिनोमेना कॉल्ड कल्चरल इंपीरियलिज्म. Acha, just so I can sort of bring it into your notice, there's another term which is called Orientalism. Orientalism, अगर आप लोगों को मौका मिले तो there's this Edward Said की किताब है Orientalism. If you ever get an opportunity, please do read that. It is an excellent book as a reference also for many subject matters. और Orientalism के ऊपर the man is an authority. तो आप लोग उनको अगर तो चांस मिले, which is going to be very difficult, but you can opt to read it. Orientalism refers to this phenomena कि एक westernized approach थी Orient की तरफ. आप लोगों ने जितनी भी पेंटिंग्स देखेंगे ना, आप इसमें बहुत there's this painter called Delacroix, Francis Delacroix. Now these painters जो इस जमाने के जितने भी थे, जो जाते थे, तो most of them didn't even visit the Orient as such. लेकिन they had this idea from stories that people brought back from the Orient कि जी वहाँ snake charmers होते हैं, all the belly dancing and these men with a huge amount of women in their harems. मतलब they had a very typical, एक अजीबोगरीब किस्म की आइडियोलॉजी कि शायद ओरिएंट जो आपके सऊदी अरब हो गया, लेबनान, मोरक्को, ये जितने की जो बेल्ट है, दे हैड अ सर्टेन वे ऑफ लिविंग व्हिच वाज एक्चुअली क्वाइट ऑपोजिट द एवरेज लाइफ ऑफ द कॉमनर देयर. चंद एक मिसालें लेके ना उन्होंने उसके इर्द गिर्द कंप्लीटली एक अजीब और गरीब किस्म की स्टोरी बुन ली और एक एग्जॉटिक अप्रोच दे दी. Barbaric, semi-exotic of their dancing, of their approach, and snake charmers, India, land of snake charmers and meat and all of this, and barbaric gods and murder and sacrifices. एक approach ले ली. इसको Orientalism कहते हैं कि एक Western lens से Orient की study is known as Orientalism. फिर हम आते हैं कल्चरल शॉक की तरफ. एथनोसेंट्रिक अप्रोच आपकी इतनी स्ट्रांग हो सकती है फॉर अ फैक्ट कि व्हेन यू आर कन्फ्रंटेड विद अ न्यू कल्चर तो आप कल्चरल शॉक लगे आप. जैसे हमारे मर्द हजरात को लगता है जब वो बाहर ममालिक पढ़ने जाते हैं,
कल्चरल शॉक लगता है उनको कि ओह दिस कैन ऑल्सो हैपन, ऐसे भी होता है. So whenever you are taken from your setting and put in a setting which is very different from your own, तो it can lead to a cultural shock. अब उसकी एक कर्व है, ये कर्व जो मैंने आपको बताई, if you guys can learn this तो well and good, it would be great for you guys, क्योंकि इससे you can sort of use this, reproduce this in your examination and would give a very good impression. जहां जहां possible हो वहां पे ना rely on graphs and statistics as much as possible, that will give more authenticity to your answers. Cultural shock होता है किस तरह की जी, सबसे पहले तो एक फेज आता है कि जब आप जाते हैं, ये आप कभी किसी ऐसे शख्स से जरूर बात करिएगा जो ग्रेजुएशन करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड गए हो, तो आपको वो बताएंगे, उनका देखिएगा आप एक्सपीरियंसेस इसी कर्व पे जा रहे होंगे. फर्स्ट तो दे गो देयर, एवरीथिंग इज न्यू एंड एक्साइटिंग एंड डिफरेंट, अभी आपने रजिस्टर नहीं किया, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं. फिर सेकंड आता है कि जी फ्रस्ट्रेशन एंड अनोयंस विद एवरीडे डिफरेंसेस. अचानक से यू फील एज इफ एवरीथिंग इज amazing and everything, but you are not really connecting with people. And then comes एक surface adjustment आती है, and then you are faced with these बीच में एक depressive phase आता है, low आते हैं, आप लोग बहुत लोग depressed हो जाते हैं, homesick हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि जिंदगी में कभी हमारे यहाँ एक जो मेजर कल्चरल जो शॉक फेस करते हैं लड़के खास तौर पे when they go abroad is when they have to do everything on their own. Number one, they have to cook, they have to clean, they have to throw out the garbage on their own, and while doing all of their studying. So since our men are so not used to doing these things, तो जब ये लोग जो बाहर जाते हैं तो ज्यादा cultural shock, ज्यादा जोरदार किस्म का लगता है, because they've never done these things ना. Most houses, I'm not saying कि ये unanimous case है for everyone, but most cases में हमारे यहाँ ये एक cultural norm है कि that the men are not supposed to do these things. So when they go abroad, so they get immediate hit कि oh, I have to do this myself, I have to cook myself. तो अब आप ये देखें ना एक सेटिंग कितनी चेंज होगी एकदम. A person who was not even used to picking up water on their own is all of a sudden made to cook for themselves. It's a cultural hit. फिर obviously बाहर से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते. फिर और दूसरा हिट होता है जी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी डिफरेंट है अब्रॉड की. You cannot afford to do these things. फिर एकदम आती है जी सरफेस एडजस्टमेंट. अब यहाँ पे जहां पे सरफेस एडजस्टमेंट आप लोगों को नजर आ रही है समवेयर ओवर हियर, नाउ दिस इज आइदर अ फेज जहां पे आप उस कल्चरल को कन्फ्रंट कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं या वहां से वापस एग्जिट कर देते हैं. फिर जी कन्फ्रंटिंग डीपर कल्चरल पर्सनल इश्यूज, ये वो स्टेज है. उसके बाद एक बहुत लंबी कर्व है एडेप्टेशन एंड असिमिलेशन. By the time you can safely say that you have assimilated into the new culture, it will take a lot of adjustment and adaptation. You would have to change the way you speak, look, understand, see things, approach things. बिल्कुल आपको alter करना पड़ता है to assimilate into a different culture. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम in order to fully assimilate उसमें ये भी होगा कि जो आपकी host culture है they have to accept you as well. कि for example आप तो fully जो सा है उनके culture को जो सा accept कर चुके हैं, but they haven't registered you as one of their own. तो क्या तब भी assimilation हो जाएगी या उनकी तरफ से भी accept? All right. अब इसके अंदर there's such a very interesting question. देखिए cultural shock is an individual phenomenon. Remember that please. जिस कल्चर में आप असिमिलेट होने की कोशिश कर रहे हैं उसका आपको एक्सेप्ट करना ना करना इज नॉट अंडर डिस्कशन हियर. वन. दूसरा वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है एंड आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज कल्चरल एक्सेप्टेंस का वो भी इंडिविजुअल होती है. some members of that culture might accept you, some might not. So your assimilation is not entirely related to the culture as a whole, क्योंकि उसके भी members हैं ना, individuals हैं. कुछ इंडिविजुअल्स आपके लिए जरा ओपन माइंडेड और एक्सेप्टिंग होंगे, कुछ बिल्कुल भी एक्सेप्टिंग और ओपन माइंडेड नहीं होंगे. वो आपको उसमें वहीं पे वहां पे पैदा होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन. When you are not accepted as a member of a culture or a society, it is either due to systematic or cultural discrimination or differences. So उनका आपको accept करना is not a requirement to come over cultural shock. ठीक है, कि वो आपको एक्सेप्ट करें ना करें वो इम्पोर्टेंट नहीं,
क्योंकि कुछ मेंबर आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कल्चर एज अ होल नहीं आपको एक्सेप्ट करता। कल्चर के प्रोपोनेंट्स होते हैं। कौन होते हैं प्रोपोनेंट्स? वो इंडिविजुअल्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी एंड दैट कल्चर। राइट, आई होप दैट्स क्लियर नाउ। तो अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि चाइना के अंदर बार बार क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्टर को इंटरप्ट करना इज कंसिडर्ड वेरी रूड। बिल्कुल जो है ना, वहां पे ये चीज पसंद नहीं की जाती, ना अप्रिशिएट की जाती है। बाकी स्टूडेंट्स आपको जज करेंगे। सेम गोज फॉर जापान ऑल्सो। जापान में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि इंस्ट्रक्टर को बार बार रोक के लेक्चर के दौरान सवाल किया जाए। दे कंसिडर्ड वेरी रूड। जबकि अमेरिका में, यूके में दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आपके मैम अपने काफी। कल्चर में भी? हाँ जी, बिल्कुल, आपके कल्चर में भी इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। अनलेस कोई टीचर स्पेसिफाई कर दे कि जी आपने इंटरप्ट नहीं करना, राइट? वरना मोस्टली तो यही तरीकाकार है ना कि यू कैन आस्क अ क्वेश्चन व्हेनेवर यू फील लाइक इट। बट इन दीज कल्चर्स दिस इज रिगार्डेड एज वेरी रूड। वहां पे कोई भी नहीं करेगा, किसी सूरत ही नहीं करेगा। अंडरस्टूड है? सो मूविंग ऑन, अब हम आते दो रेलेवेंट फिनोमिना के ऊपर। वन इज कॉल्ड जी कल्चरल relativism and cultural absolutism. अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म ये है कि व्हेन यू टेक एन अप्रोच जहां पे आपके अपने जाती बाइसेस कहीं पीछे रह जाए एंड यू अप्रोच समवन्स कल्चर एट इट्स ओन, मतलब उसको आप किसी लेंस के थ्रू देखने की कोशिश ना करें, बायसेस के थ्रू देखने की कोशिश ना करें। और इसके लिए बहुत ज्यादा ओपन माइंड और एक विलिंगनेस टू अडेप्ट एंड अंडरस्टैंड न्यू वैल्यूज एंड नॉर्म्स की जरूरत है। कल्चरल रिलेटिविज्म को प्रैक्टिस करना इज नियर टू इम्पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव योर ओन बायसेस, योर ओन एजुकेशन, योर ओन बिलीफ सिस्टम्स। ट्रू। जाहिर है हमारे जैसे लोग जो हैं, अब जितना मर्जी हम ओपन माइंडेड हो जाएं, जब कोई आप चाइना जाएंगे और आपके सामने कोई आधा जिंदा ऑक्टोपस खा रहा होगा सोया सॉस में डिप करके, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपके लिए इस चीज को हजम करना नामुमकिन हो जाएगा। आप वहां से उठ के भी जा सकते हैं। ट्रू। अब नाउ द योर चाइनीज फ्रेंड माइट थिंक दैट यू आर बीइंग वेरी रूड, but maybe to you it is very difficult to sort of adjust to this idea of someone eating something moving, right? But वहां पे it's very common. वो पूरी तरह मारते भी नहीं किसी चीज को खाने से पहले। Often squid and octopus being a classic option. So how will you practice cultural relativism in that scenario? So जो भी ऐसी cultural elements और practices है ना, तो you have to learn to suppress your own biases. एक open mind के साथ and willing to ignore things that you don't like and try to understand कि why this culture does what it does. फिर आते हैं जी कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म। ये प्रैक्टिस करना बहुत आसान है और हमारी पब्लिक इसको बहुत जियो जान से प्रैक्टिस करती है। इसका लॉजिक ये होता है कि जी हमारा कल्चर है सुप्रीम और हम सबसे बेहतर हैं, और असल में तमाम सक्सेस की जो चाबी वो हमारे पास है और दूसरे को पता ही कुछ नहीं है। जितना मर्जी हम मर खप चुके हो दुनिया में और जितना मर्जी हम इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड हो और जितने मर्जी इश्यूज हमारे कल्चर में, हम वेस्ट को फिर भी इसी तरह देखते हैं जैसे इनको तो कुछ पता है। कई मामलों में एक तरफ हम जेनोसेंट्रिसिज्म को भी प्रैक्टिस करते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि बड़े बेहया लोग हैं, बड़ी कोई कल्चरल वैल्यूज नहीं है, कोई फैमिली यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं फलाना। ये भी तो करते हैं हम साथ साथ। सो दैट इज कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म। इसके साथ जीनोसेंट्रिसिज्म ऐड हो जाए तो उससे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन कोई नहीं होता। बिकॉज एट वन एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम एन आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरी तरफ आप उसी कल्चर को जज भी कर रहे होते हैं। जी जी। मैम इसमें कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म में और एथनोसेंट्रलिज्म में क्या फर्क है? आरंट दे द सेम थिंग? नो, एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? वो होती है कि जी आप अपने कल्चर के लेंस से
देखने की कोशिश करें। जैसे मैं हमारे कल्चर में एक चीज गलत है, दूसरे कल्चर में वो चीज गलत नहीं है, तो मैं देखूंगी अपने लेंस से, होंगे मैं कहूंगी यार ये लोग क्यों कर रहे हैं, हमारे कल्चर में तो चीज गलत है, राइट। एथनोसेंट्रिक ये होता है कि आप अपने कल्चर को लेंस बना के दूसरे कल्चर को स्टडी करते हैं। कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म ये होता है कि जी आप ना सिर्फ उसको सेंट्रिक अप्रोच ले रहे हैं, यूर सेइंग कि ये जो हमारी सोसाइटी है वो सुप्रीम एथिकल वैल्यू है। सुप्रीम एथिकल वैल्यू मीन्स कि व्हाट वी आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच में होता है कि आप अपने लेंस के थ्रू दूसरे की कस्टम्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, सही गलत व्हाटएवर, उसमें कुछ चीजें आपकी उनके साथ मैच भी कर रही हो सकती। लेकिन जहां पे आप एब्सोल्यूट की बात करते हैं ना, कोई भी चीज डेफिनेट या एब्सोल्यूट हो जाए, वहां पे एक एक्सट्रीम स्टैंड आ जाता है। एक्सट्रीम स्टैंड ये कह रहा है कि जी आपने एक सुप्रीम एथिकल वैल्यू है, हम लोग जैसे आप अपने मौलवी हजरात के पास जाए तो उनके पास जो जिंदगी गुजारने का नुस्खा होगा वो आप लोग भी नहीं फॉलो कर सकेंगे, वेस्टर्न कोई गोरा वोरा तो क्या। तो दैट इज एब्सोल्यूटिज्म, कि जिसमें आप गुंजाइश ही ना दें। आप देखें ना, इस तरह देखें ना कि आप जाएं, इसकी बहुत मैं आपको फनी से अगर एग्जांपल दे दूं, जैसे आप मस्जिद में जाएं तो एक शख्स जो है खुद नमाज पढ़ने के बजाय कॉन्स्टेंटली ये देखता रहे कि आप कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, और वो आपको ये बताए कि नहीं ये गलत है, आपने यूं क्यों सजदा किया, यूं क्यों रुकू लिया, इस तरह क्यों सजदा किया, हाथ पूरे यूं फैला के रखते, ये एब्सोल्यूटिज्म है। कि आप एक बहुत ही डिफाइंड सुप्रीम वैल्यू सिस्टम बताएं और कहें कि भाई इससे टच से मस हुए ना तो बस नहीं हो सकता। बहुत छोटी छोटी चीजें, ये खासतौर पे कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म जो होता है वो यूजली उसके ना रिलीजन के कॉम्बो के साथ लगता है, अकेला नहीं वो अप्लाई होता, अक्सर बेशतर रिलीजियस कॉम्बो के साथ आता है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, बिल्कुल मैम रिलीजन का सहारा लेते हैं। जी जी मैम एब्सोल्यूटिज्म और एथनोसेंट्रिसिज्म जो है इन दोनों में कंपैरिजन मौजूद है। कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर एब्सोल्यूटिज्म में मैं अपने कल्चर को कंपेयर ही कर रहा हूँ दूसरे से, और एथनोसेंट्रिसिज्म में भी मैं अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन एथनोसेंट्रिज्म में आप कंपेयर नहीं कर रहे। एथनोसेंट्रिक अप्रोच में आप अपने कल्चर के थ्रू दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सही गलत। जैसे मैंने जो आप लोगों को इमेज दिखाया था यहाँ पे, अब व्हाट इज दिस वुमन डूइंग, शी इज अज्यूमिंग कि दिस वुमन इज सप्रेस्ड, शी कुड बी ऑप्रेस्ड और शी कुड हैव चोजन टू डू दिस, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसकी खातून के दिमाग में ये है कि ये hang in there, we will free you, she is not judging her, she is saying I will come help you. Ethnocentric is not as extreme as cultural absolutism. समझ रहे डिफरेंस? ये कंपैरिजन नहीं है एथनोसेंट्रिक में। इसमें ये होता है कि आप दूसरे के कल्चर को अपनी नॉलेज से वैल्यूएट कर रहे हैं, जो आपकी कल्चरल नॉलेज मौजूद है आपके पास, आप उसको वैल्यूएट करें उसकी बेसिस पे, मैम अपने तो कल्चर को मैम देखकर। मैम जी जी सॉरी मैम, आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। मैम तो ये में हमने ये लिखा हुआ है ना, ऑन हाउ इट कंपेयर्स टू वन ओन कल्चर नॉन। यस दैट इज ट्रू, बट यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप दूसरे के कल्चर को एवेल्युएट कर रहे होते हैं ना, उसमें एवेल्युएशन का एलिमेंट जरूरी है। आप इस तरह समझें कि आपने अपने, अब जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे या दूरबीन के नीचे कुछ चीज देखते हैं तो या आपको करीब नजर आएगी या दूर नजर आएगी, ऐसा ही है, राइट? जी हाँ। हाँ, अब बिल्कुल शीशा होगा तो आपको वो वैसी ही नजर आएगी जैसी वो है। सो आप एथनोसेंट्रिसिज्म को दूरबीन समझें, तो या तो वो आपको बहुत करीब दिखा रही होगी चीज या बहुत दूर दिखा रही होगी, क्योंकि लेंस अंदर ऐसा लगा हुआ है। अब जो एब्सोल्यूटिज्म है ना, एब्सोल्यूटिज्म में ये है कि उसमें दूरबीन कोई नहीं है, उसमें आपने कहा भाई जो भी है हम ही सही है, ये बिल्कुल गलत है। एथनोसेंट्रिसिज्म में आपकी अंडरस्टैंडिंग बाय कंपैरिजन या बाय एवेल्युएशन डिफरेंट हो, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? एथनोसेंट्रिसिज्म इज नॉट नेसेसरली लाइक, ये आप यूं समझें
कि जैसे ये एक मैंने एग्जांपल यहाँ दी हुई कि अमेरिकन ये कहते हैं कि द इंग्लिश पीपल जो है ना, मतलब द ब्रिट्स दे ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। ये बात करना, दिस इज नॉट ए हार्मफुल अजम्पशन, इट इज नॉट एन एक्सट्रीम स्टैंड। जबकि जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूटिज्म की तरफ, तो आप क्या कह रहे हैं, अगर वही अमरीकी ये कहना शुरू कर देना कि ये अब इनको सजा होनी चाहिए इस साइड पे चलाने की रोड, तो वो कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म। सिवेरिटी का डिफरेंस कि आप दूसरी चीज को अकोमोडेट करने के लिए तैयार ही नहीं। एथनोसेंट्रिसिज्म में आप उसको जज कर रहे हैं फ्रॉम योर लेंस, बट यू आर नॉट सेइंग कि भाई इस पे पनिशमेंट होनी चाहिए या ये कुछ सुप्रीम एथिकल वैल्यू को उन्होंने खराब कर दिए, ऐसा तो नहीं कर रहे ना वो। आप इसको इस तरह समझे कि जैसे सऊदियों ने बहुत साल खवातीन को ड्राइव करने की इजाजत नहीं दी महरम के साथ, लेकिन जैसे ही कोई विजिट करने आए खातून उनके मुल्क, वो उसको भी इजाजत ना दें ड्राइव करने। हाउ वुड दैट अप्रोच अपीयर? दैट वुड बी कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म, कि वो उनको भी, जो आपके अपने मेंबरान भी नहीं है, उनको भी आप वही चीज सही बताएंगे जी, यही करना है हर सूरत। कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म जो है उसको इफेक्ट करने के लिए आपको, जैसे जितने भी आपके टेररिज्म वाले लोग हैं, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो आइसिस दाइश वगैरह, ये क्या है, ये कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म प्रैक्टिस करते हैं कि या तो जो हम कर रहे हैं आप उसके साथ हैं और वो सही है, या आप नहीं कर रहे हैं तो आप मरने के लिए तैयार हो जाएं और आपके खिलाफ हमने जिहाद कर दी। मतलब ये होता है कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म से। अच्छा मैम, अगर एथनोसेंट्रिज्म जो है उसमें इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उनको उन यानी थर्ड पर्सन की कल्चर के हिसाब से प्रैक्टिस करने की गुंजाइश दे रहे हैं, बट एब्सोल्यूटिज्म में नहीं दे रहे। नहीं, उसमें आप देखिए ना, सिर्फ आप स्टडी कर रहे हैं, आप एवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें आप उन पे फोर्सिबली इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे अगर कोई गोरा यहाँ पे पाकिस्तान आके विजिट करे और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि क्योंकि ये खवातीन बुर्का लेती हैं तो ये बड़ी सप्रेस्ड होगी, ये एक अंडरस्टैंडिंग है उसकी इवैल्यूएशन है, ठीक है। जबकि अगर आप इसी चीज को इस तरह से देखें कि जैसे सवात के अंदर इंसिडेंट्स कई होते रहे, जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने पब्लिक फ्लॉगिंग करना शुरू कर दी थी लोगों के ऊपर, कि जो उनके साथ उनको लग रहा था कि जी इन्होंने ब्रेक किए रूल्स शरिया के, अपनी मर्जी से पनिशमेंट दे रहे थे। दैट इज कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म, जहां पे दूसरे की ओपिनियन की गुंजाइश ही खत्म हो जाए कंप्लीटली। कम अज कम एथनोसेंट्रिक अप्रोच में आपका जो रिस्पॉन्स है वो या सिंपथी का भी हो सकता है, जज कर रहे हैं आप लेकिन उसमें सिंपथी भी आ सकती है, जैसे मैंने पीछे दिखाया आपको कि आई विल फ्री यू, वो खातून जो कह रही है दूसरी, तो उसमें सिंपथी का एलिमेंट आ सकता है। कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म में सिंपथी की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पे आपकी अपनी एक सुप्रीम वैल्यू है और वही सही है, उसको जो नहीं कर रहा वो गलत है और वो मरने के काबिल है, एसेंशियली इतना लेवल है। उससे क्या है कि वहां पे ये आप लाइन पढ़े ना कि कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म दैट डिनाई इंडिविजुअल्स द मॉरल राइट टू मेक कंपैरिजन and insist on universal standards of right and wrong and are happily adopted by those who control the state. अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली अब आप इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, चाइना के अंदर जो उनकी जो मुस्लिम माइनॉरिटी है यूइगर्स, उनके साथ क्या हो रहा है, they weren't falling in line with the mandate of the state। जो उनका कल्चर है कि जी स्टेट को पहले रखा जाए, रिलीजन को बाद में रखा जाए, वो माइनॉरिटी उस आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस नहीं कर रही, तो व्हाट दे डिड वाज कि दे मेड करेक्शनल कैंप्स फॉर देम, जहां पे उनकी जबरदस्ती स्कार्फ उतारे गए। और ये मतलब आप देखें ना, एक होता कि वो उसको उनको कहते कि जी आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये ठीक नहीं है, आप ऑप्रेस्ड हैं, ये है वो है फलाना, दैट वुड बी एन एथनोसेंट्रिक अप्रोच। बट व्हेन यू दे डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट इट एंड दे सेड कि नहीं, जो आप कर रहे हैं उसको हमने ठीक करना है, उसमें यूनिवर्सली यही सही है और यही सही है, इसके अलावा कुछ और सही हो नहीं सकता। एंड वहां पे दे इम्प्लीमेंटेड मेजर्स टू इंश्योर कि वो ना हो सके।
दैट इज कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म, कि भाई एब्सोल्यूट एक चीज है, उससे उसके अंदर डिस्कशन की गुंजाइश नहीं. द मॉरल राइट टू मेक कंपैरिजन, कि देयर इज नो कंपैरिजन, व्हाट वी आर इज एब्सोल्युटली राइट. एथिनोसेंट्रिक में तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं और फिर उसको अपनी लेंस से स्टडी भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें आप जजमेंट बना रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंपैथी बेस्ड है या एंगर बेस्ड है, लेकिन उसमें ये एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं है. एथिनोसेंट्रिक सेंट्रिसिज्म जो है वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, कि आप अपने आप को बड़ा ओपन माइंडेड बंदा समझते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हो जिसको आपने खुद भी रजिस्टर ना किया हो कि जी हम जजमेंटल हैं, राइट. लेकिन कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म में उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सबकॉन्शियस तक बात नहीं है, वो जो है वही सही है बस. इसलिए इट इज सच एन एक्सट्रीम स्टैंड. अच्छा, similarities and differences between cultural absolutism and cultural relativism. मैम जी. मैम अभी 8:15 पे मिस क्रोनोलॉजी क्लास भी है ना, मैंने कहा आपको रिमाइंड करा दूं. 8:15 पे आपकी क्लास? जी हाँ अच्छा, आई मैम, थॉट कि शायद 15 मिनट का मिस गैप सैरिश होगा. के साथ है. राइट, अच्छा चलें ठीक है. we will pause at this particular slide and then I will share this lecture with you guys इंशाल्लाह. आप लोगों की थैंक यू मैं सो एक मच. गूगल क्लासरूम में बना दूंगी इंशाल्लाह, जिसमें आप सबको डाल दिया जाएगा. फिर उसमें जितने भी हमारी इंटरेक्शन, असाइनमेंट्स, वॉट एवर वी विल बी डिस्कसिंग, वो सारा कुछ वहां पे अपलोड होगा. वहीं पे मैं डाल भी दूंगी. चलिए. अच्छा मैम ये जो जी सॉरी मैम, ये जो आप असाइनमेंट की बात कर रही हैं, आपने कल एक्चुअली मैं मैसेज किया था ना सैटरडे को, तो आई थिंक या तो आपने कहीं जी और जी. अपलोड किया था, मुझे आई नहीं एम पता था. सॉरी, यस सॉरी, संडे की बात कर रही हूँ. ओके. जी जी. हमने ये स्लाइड्स वगैरह आप अपलोड कर देंगी ना जी जी. देखिए, उन्हें? मैं जैसे आप लोगों का गूगल क्लासरूम क्रिएट करूंगी तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा कोर्स, स्लाइड्स, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड. आई वुड रिक्वायर एवरीवन टू सेंड मी देयर ईमेल आईडीज ग्रुप के अंदर ना, व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी ईमेल आईडीज प्लीज मुझे सेंड कर अच्छा मैम, लास्ट थिंग दीजिए. मैम, जी. इज दिस पॉसिबल फॉर यू कि अगर आप फॉलोइंग जो लेक्चर है हमारा उसकी स्लाइड्स अपलोड कर दें ताकि हम लोग थोड़ा सा पढ़ के आ जाएं पहले से? नेक्स्ट लेक्चर की? नहीं नहीं नहीं, वो आप लोग जो है ना फिर दीवाने हो जाएंगे और मुझे भी दीवाना कर देंगे, इसलिए वो नहीं अच्छा. करना हमने. तो वो हम नहीं कर रहे. आप लोग साथ साथ इंशाल्लाह अपलोड होती जाएंगी, क्योंकि व्हेन यू विल गो थ्रू इट आपकी एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और फिर आप उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे, और फिर मुझे समझाने में फिर डबल टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है. तो हमने कोशिश ये करनी है कि जैसे ही वाइंड अप होगा तो आपका अपलोड हो जाएगा. पहले से पढ़ने से मैं नहीं चाह रही आप लोग कंफ्यूज हो. बहुत सारी चीजें स्लाइड्स में मैंने लिखी नहीं होती, मैं आपको ओरली बता रही होती. स्लाइड्स में तो एक समरी होती है ना, सॉर्ट ऑफ लिंक बनने के ये लिए, कंप्लीटली इसके फाइन लिए. मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. कोई मसला नहीं. चले, And ओके before जी. we go, I also have a question, ma'am, please. जी जी Sorry, प्लीज. ma'am, जी जी stepping प्लीज. on. Ma'am, मैंने actually master class में ली थी, तो could you please kindly recommend me some books, ma'am, के जो sociology के लिए मैं साथ साथ पढ़ लूँ या देखिए, मैं मास्टर क्लास में मैंने कुछ इतना ज्यादा डिटेल में मैं गई नहीं थी, मैंने कोर्स का ब्रेक डाउन नहीं किया था. आई जस्ट ओनली एक्सप्लेन कि मैं क्लासेस लूंगी किस तरह. तो एसेंशियली जो कल्चर का ये टॉपिक है ना, ये हमारा पहला टॉपिक है. उसमें सिर्फ मेरे ख्याल में मैंने स्टेजेस ऑफ मेथोडोलॉजी, सोशियोलॉजी कहाँ से आई, क्या है, उसके हवाले से कुछ रीडिंग्स और वो सब चीजें. दूसरा, बुक्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी. बुक भी एक अपलोड कर दूंगी, उसमें 2-4 पेपर्स भी हैं. जितना मटेरियल मैंने आपको सोशियोलॉजी के लिए मैं अपलोड कर दूंगी, उसको उससे ज्यादा शायद ही आपको मिलेगा. तो डोंट वरी अबाउट दिस, इंशाल्लाह वो चीजें आप लोगों की सारी अपलोड हो जाएंगी. इनफैक्ट अगर मैं आपको अपने पुराने गूगल क्लासरूम में अगर कोशिश करती हूँ ऐड करूँ, तो उसमें सारा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होगा, इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स. तो कोई इशू नहीं होगा आप लोगों अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपने असाइनमेंट मैम दिया था, ये अभी हमारे पास टाइम है ना इसको सबमिट करवाने का? क्योंकि एक्चुअली जो को. वर्किंग है मिस, वो जी हमें फिर वो दिन जी के जी. टाइम तो आप लोग कर नहीं लें था. सबमिट, अभी टाइम है. जैसे ही सारों के रिसीव होंगे तो ही मैं इस पे फीडबैक दूंगी. लेकिन प्लीज ये ना हो कि मुझे हफ्ते डेढ़ बाद मिल रहा हो किसी का. ये कोशिश ओके. करें कि इसको जितना जल्दी वाइंड अप कर लें. जस्ट वन क्वेश्चन, तो उसका अटेम्प्ट करना आपका मुझे थोड़ा आइडिया दे देगा कि आप वेयर यू गाइस स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन. तो वो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया. चलें जी, ओके. आई गेस फिर वी कैन एंड दिस सेशन नाउ. थैंक यू सो मच मैम. अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज.